زمین پر چت لیٹا وہ بے بسی اور لاچاری سے کچن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹانگیں بے جان سی ہو گئی تھیں، پورا وجود پسینے سے تر بتر ہو گیا تھا، ہاتھوں میں لرزاہٹ اور وجود میں کپ کپی بڑھتی جا رہی تھی۔ وفا بے تاثر چہرہ لیے یکٹک اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج اسے تکلیف میں دیکھ کر دل کو ایک عجیب سا سکون ہوا تھا، اس انسان کی وجہ سے۔ اس کے دو اپنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس درندے نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ نہ جانے کتنی بیٹیوں کے ماں باپ بھائی یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے ہوں گے۔ اگر تم مجھے مار دو گی تو التمش بھائی تم سے نفرت کریں گے، بے انتہا نفرت۔ ابھی تک شاید تم نے ان کی محبت دیکھی ہے، لیکن جس دن تم ان کی نفرت کا سامنا کرو گی اس دن تمہارا دل خود کو مٹانے کا کرنے لگے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے بچاؤ، ورنہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا۔ بھائی کی نفرت کے ساتھ ساری زندگی جیل میں سڑو گی تم، اور دنیا کا کوئی قانون، کوئی وکیل، کوئی جج تمہاری رہائی نہیں کروا پائے گا۔ آخری وقت میں بھی وہ اسے ٹریپ کرنے لگا، شاید ایموشنل ہو کر وہ اس کی مدد کرے، ورنہ واقعی آج اس کی موت آ گئی تھی۔ ہاشم کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ جو اب ایک طرف سکون سے کھڑا ہادی روئے زادہ کی موت کا نظارہ لائیو دیکھ رہا تھا، آخری وقت میں اس کے شاطرانہ دماغ کی چال پر الرٹ ہو گیا۔ کہیں جذبات میں بہہ کر وفا اس کی مدد کر کے جان نہ بچا لے اس کی۔ آخرکار وہ بھی تو ایک لڑکی ہی ہے، اور کوئی لڑکی محبت کرنے والا شوہر، ماں باپ، سب سے بڑھ کر آزادی چھوڑ کر ساری زندگی جیل میں گزارنا پسند نہیں کرے گی۔ معافی مانگو مجھ سے، وفا کے سرد لہجے میں کی گئی فرمائش پر وہ حیران رہ گیا۔ اسے تو یہی امید تھی کہ اب وہ کسی بھی وقت اٹھ کر اس کی مدد کرے گی، مگر وہ تو کچھ اور ہی فرمائش لے کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ تم پاگل ہو کیا؟ میری مدد کرو اور میں نے کہا کہ معافی مانگو، گڑ گڑاؤ ایک ایک سانس کے لیے۔ وہ طیش میں آ گئی۔ ہاشم نے حیرت سے وفا کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی۔ ہادی کو تڑپتا دیکھ کر جیسے اسے اندر تک سکون مل رہا ہو۔ اس کا تجربہ کہہ رہا تھا، چاہے کوئی کتنے ہی مضبوط دل کی مالک لڑکی ہو، مگر وہ اس طرح کسی بھی انسان کو تڑپتا دیکھ کر اس قدر خوش نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ لڑکی نارمل ہے؟ وفا کی حالت دیکھ کر اسے شبہ گزرا۔ نہیں مانگوں گا معافی۔ آخری وقت میں بھی وہ وفا کو تپا گیا تھا، مگر وہ تپنے کی بجائے پرسکون ہو کر دوبارہ چیئر پر جا بیٹھی۔ کچھ وقت یوں ہی گزر گیا۔ ہادی روئے زادہ اپنی ضد پر اڑا زمین پر پڑے پڑے کراہتا رہا۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ اسے تڑپتا دیکھ کر دیدنی مسکراہٹ لیے وہ اس کے قریب آئی۔ وہ زمین پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ زہر خون میں تحلیل ہو کر دھیرے دھیرے اسے اندر سے ختم کر رہا تھا، مگر وفا کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے تڑپنے کو بہت انجوائے کر رہی ہو۔ ہیلپ! فرش پر گرا ہادی روئے زادہ درد سے کراہا، مگر وفا قہقہا لگا کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ ہاں ہاں، بالکل ایسے ہی کراہو، ایسے ہی چیخو، مجھے سکون مل رہا ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان جھولتے انسان سے اس طرح کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے وہ بالکل کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ کچھ پل وہ اس کے دوبارہ کراہنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ صرف گہرے گہرے سانس لے کر شاید خود کو کچھ دیر اور زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ طیش میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، ایک طرف رکھا بیلٹ اٹھا کر اس کا ایک سرا ہاتھ پر لپیٹا، اسی بیلٹ سے اس کے عدمِ وجود پر پے در پے کئی وار کرتے ہوئے زور زور سے چلانے لگی۔ میں نے کہا چیخو، چلاؤ، مجھ سے اپنی ایک ایک سانس کی بھیک مانگو، تاکہ تمہاری کراہیں، فریادیں، معافیاں میری بہن اور میرے باپ کے کانوں کو سنائی دیں، اور ان کی روح کو سکون پہنچے۔ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کی ایک بیٹی کو تکلیف سے دوچار کرنے والے کا ان کی دوسری بیٹی نے کیا حال کر دیا۔ تمہاری چیخ ہر اس لڑکی کے کانوں میں پہنچنی چاہیے جن کو تم نے اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا ہے۔ مسلسل چیختے ہوئے وہ دیوانہ وار اسے بیلٹ سے مار رہی تھی، اور جہاں ہادی روئے زادہ کی چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا، وہیں یہ چیخیں ہاشم کے اندر سکون کی لہریں دوڑا رہی تھیں۔ آج سچ میں شاید انصاف کا دن تھا، اور یہ انصاف کسی قانون نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ انصاف ایک بہن، ایک بیٹی نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر کیا تھا۔ فون وائبریٹ ہونے پر وہ اس جگہ سے ہٹ کر کچھ دوری کے فاصلے پر چلا گیا۔ التمش روئے زادہ۔ صبح سے وہ خود اسے کال کر رہا تھا، مگر اب جب اس نے خود کال کی دوبارہ سوچ رہا تھا، لیکن کال تو اٹھانی تھی اور وفا کی یہاں موجودگی سے بھی آگاہ کرنا تھا اسے۔ کچھ بھی ہو جائے وہ اس طرح وفا کو فی الحال پولیس کے حوالے کروانے کے حق میں نہ تھا۔ کال اٹھا کر التمش کو اس جگہ کا پتہ بتا کر وہ خاموشی سے ہادی روئے زادہ کی حالت دیکھنے لگا۔
मगर अब उसे हादी रॉयज़ादा की मौत के साथ साथ वफ़ा का मुस्तकबिल भी अंधेरों की जद में नज़र आ रहा था। आखिरकार उसने पूरे होशो हवास में कत्ल किया था, जिसकी सज़ा शायद अल्तमश रॉयज़ादा उसे दिलवा कर ही रहेगा। मुझे इनके लिए कुछ करना होगा, मगर क्या? उसका ज़मीर उसे लानत मलामत करने लगा। अगरचे वफ़ा ने उसकी आंखों के सामने ये कत्ल किया था, मगर फिर भी इंसानियत के भेस में छुपा दरिंदा अगर मर गया था तो इसमें भला क्या हर्ज था? वो खुद भी तो इसी इरादे को दिल में रखकर पुलिस फोर्स में आया था। अगर आज उसका बदला वफ़ा के ज़रिए मुकम्मल हुआ है तो उसका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। कुछ सोचकर वो घर की पिछली साइड गया। वहाँ की दीवार से छलांग लगाकर घर के अंदर दाखिल हुआ। यहाँ बिजली का कोई ख़ास निज़ाम तो न था, मगर कहीं दूर खंबे से आती मेन तार में एक कनेक्शन लगा था, जो यकीनन गैर कानूनी तरीके से लगाया गया था। कुछ सोचकर वो अपनी गाड़ी की तरफ भागा। वहाँ से अपने ग्लव्स और कुछ ज़रूरी सामान लेकर वो दोबारा उसी जगह पर आन खड़ा हुआ। वो क्या करने जा रहा था वो ये खुद भी नहीं जानता था, मगर उस वक्त उसके जहन पर एक ही सोच सवार थी कि वफ़ा को वो किसी तौर सज़ा नहीं होने देगा। वो मासूम है। उसने जो कुछ भी किया अपनी बहन और बाप की मौत का बदला लेने के लिए किया, मगर उसका ये बदला कितने दिलों में ठंडी फुहार बनकर बरसा है ये शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। मेन तार से कनेक्ट ये तार शायद हादी के घर में ही जा रही थी। कानून को जेब में रखने वाला शायद यहाँ भी कानून तोड़ रहा था। हादी के घर में दाखिल होकर वो उस तार को फॉलो करने लगा। आखिर ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है? कुछ दूर जाकर एक खस्ता हालत बिजली के बोर्ड में उन तारों का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। एक झटके से खींचकर उसने तार को बोर्ड से अलग किया, बाहर निकाला। यकदम बोर्ड से आग के कई शरारे निकले और हर तरफ अंधेरा छा गया। मोबाइल की टार्च जलाकर उसने करंट से भरी तार को टटोला। ये मगरिब से इशा के दरमियान का वक्त था। हर तरफ अंधेरा तेजी से फैल रहा था। अल्तमश किसी भी वक्त यहाँ आ सकता था। टाइम कम था। उसे जो भी करना था जल्दी करना था। ग्लव्स चढ़ाकर एहतियात से तार उठाई और बिना किसी आहट के आहिस्ता आहिस्ता चलता वो उस जगह पर आया जहाँ वफ़ा और हादी रॉयज़ादा मौजूद थे। कुछ वक्त पहले वो शेरनी बनी हुई थी, मगर अब हर सू अंधेरा महसूस करके घबरा कर बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। कुछ सोचकर तार को एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ में लाइटर निकालकर खिड़की के पर्दे को आग लगा दी और खुद बर्क रफ्तारी से सतून के पीछे जा छुपा। आहिस्ता आहिस्ता आग ने जोर पकड़ा और वो एक पर्दे से दूसरे पर्दे में फैलती चली गई। हादी और वफ़ा को भी आग की रोशनी ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जहां आग को देखकर हादी की आंखों में खौफ हलकोरे खाने लगा, वहीं वफ़ा का भी घबराहट के मारे बुरा हाल हो गया। उसे आग से वैसे भी डर लगता था। आग लगने से पहले तक उसे कुछ उम्मीद थी कि शायद वफ़ा उसे बचा ले, मगर अब वो उम्मीद भी जाती रही। आज सही मायने में उसे अपने गुनाह याद आ रहे थे। शायद यही उसके गुनाहों की सज़ा थी। जिस आग में उसने मासूम लड़कियों को जलाकर मारा था, उसका अंजाम भी वैसा ही होना था। आग अब फैलकर तेजी से बढ़ने लगी। वफ़ा के कदम आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ने लगे, मगर हादी तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, वो पूरी कुव्वत मुजतमे करके दहाड़ा था। उसी वक्त हाशिम ने करंट से भरी नंगी तार सीधा हादी रॉयज़ादा पर फेंकी, जो कि सीधा जाकर उसके पेट पर ठहर गई। इसके बाद हादी के हलक से एक आवाज़ ना निकली। मेन तार से आता कई हजार वॉट का करंट वो हादी रॉयज़ादा की बॉडी में उतरा तो उसकी जान निकलने में 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा था। पूरा वजूद सफ़ेद हो चुका था, जैसे किसी ने खून की बूंद बूंद निकाल रही हो। पहली बार उसकी हालत देखकर वफ़ा की चीख निकल गई। हाशिम ने तेज़ी से आग में जलता एक पर्दा खींचकर हादी पर गिराया। वफ़ा घबराकर बाहर की सिमत भागी, मगर सामने मौजूद इंसान को देखकर उसके कदम वहीं थम गए। लम्हों का खेल था और हादी रॉयज़ादा के वजूद को आग ने इतनी जल्दी पकड़ा जैसे उस पर किसी ने पेट्रोल का छिड़काव किया हो। शायद ये भी कुदरत का इंसाफ और करिश्मा था। अल्तमश अपने सामने खड़े अल्तमश को देखकर उसकी आंखें नम हुई, मगर अगले ही पल कानों के करीब हादी रॉयज़ादा का जुमला गूंजा, भाई ने तुम्हें तलाक दे दी है। उसके तमाम एहसासात और जज्बात बदले की भेंट चढ़ गए थे। अब बाकी शायद कुछ भी ना बचा था। किसी हारे हुए जुआरी की तरह वो वहीं साकित और जामिद खड़ी थी। अल्तमश भी उसे इग्नोर करके आग की तरफ बढ़ा, जहां उसने हादी का चेहरा देख लिया था। वफ़ा की रही सही हिम्मत तोड़ने के लिए उसका बस इतना सा इग्नोर करना ही काफ़ी था। हादी हादी वो अपने भाई की मदद करना चाहता था, मगर आग इस कदर फैल गई थी कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। उस वक्त हाशिम भी बाहर निकल आया। हाशिम को वहाँ मौजूद देखकर वफ़ा तो शुशदर ही रह गई। ये यहाँ कब से मौजूद है? क्या इन्होंने सब कुछ सुन और देख लिया है? मन में पहला सवाल यही उभरा, मगर अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा न था।
अगर वो इस कत्ल का चश्मदीद गवाह बन भी गया तब भी अफसोस का कोई जवाब नहीं बनता था। जिस दिन उसने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए कदम बढ़ाए थे, अपने अंजाम से उसी वक्त उसी दिन से वो वाकिफ थे। सो खामोशी से ये सारा तमाशा देखती रही। वो दीवानावार चीख रहा था, अपने भाई को बचाने के लिए बार बार हाशिम से मदद मांगने के साथ साथ खुद भी भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर यहाँ ऐसा कुछ न था जिसकी मदद से इतनी ज़्यादा आग पर काबू पाया जा सके। ज़िंदगी में पहली बार अल्तमश रॉयज़ादा को अपना आप बेबस महसूस हुआ, मगर वफ़ा को ये मंज़र देखकर सुकून आने लगा। एक दिन उसके माँ बाप भी अपनी बेटी की दर्द भरी आवाज़ें सुनकर यूं ही तड़प रहे थे। उनकी मदद करने भी कोई नहीं आया था और हादी रॉयज़ादा के पास मदद करने वाला होने के बावजूद चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। शदीद बेबसी के एहसास से वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। बस कर यार, अब कुछ नहीं हो सकता। हाशिम ने अल्तमश के कंधे पर हाथ रखा, आंखों में अश्क लिए। एक नज़र हाशिम की तरफ देखकर वो शदीद तैश की हालत में वफ़ा की जानिब बढ़ा। तुमने मारा है मेरे भाई को, वो पूरी कुव्वत से धाड़ा। वफ़ा का दिल उसकी धाड़ पर दहल कर रह गया। हाशिम उसको इस कदर तैश में देखकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। अल्तमश रुक जाओ, वो तेज़ी से उसके सामने आया। हाशिम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं इस बेवफा कातिल लड़की को आज जान से मार दूंगा। इसे किसी रिश्ते का पास नहीं। हाशिम से अपना आप छुड़वाने की कोशिश में वो वफ़ा पर अपने दिल की भड़ास निकालने लगा। आखिरकार हाशिम को एक तरफ धकेल कर वो दोबारा वफ़ा की जानिब बढ़ा। शदीद गुस्से में आकर हाथ हवा में बुलंद करके उसका मुंह तोड़ देना चाहा, मगर उसकी आंखों में दुख भरे अश्क देखकर उसका हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया। वो खामोशी से अपनी जगह खड़ी रही। एक नज़र अल्तमश के हवा में बुलंद हाथ को देखा। जख्मी मुस्कुराहट ने लबों को छुआ। आंखों से तकलीफ के दो आंसू निकल कर रुखसारों पर फैल गए। अल्तमश जब्त से आंखें मीच कर दोनों हाथों की मजबूत मुठ्ठियां बनाए 2 कदम पीछे हटता हाशिम के सामने आया। इसे मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ, गिरफ्तार करो इसे अभी के अभी। गिरफ्तार? मगर क्यों? हाशिम ने हैरत की इंतहा कर डाली। ये तुम पूछ रहे हो? तुम जानते हो ये हादी के साथ यहाँ भाग कर आई है, और इसके सिवा और कौन कर सकता है ये सब कुछ? हादी जल रहा था और उसके चेहरे पर अफसोस की एक लकीर भी रकम ना थी। तो इससे तो ये साबित नहीं होता कि कत्ल इसने किया है, तो इसके सिवा कौन करेगा ये सब? ये मेरे मासूम भाई की मुजरिम है। इसे अभी के अभी गिरफ्तार करके मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ, वरना अल्तमश रॉयज़ादा का खून खोल जाएगा, और अगर मेरा खून खोला तो मेरे हाथों कुछ गलत हो जाएगा। वो ज़ब्त से गोया हुआ। आज वाकई शायद उसकी बर्दाश्त का इम्तहान था। पहले उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी, फिर मालूम हुआ कि उसकी बीवी किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके अपने भाई के साथ भागी है, और अब उसका भाई इस दुनिया से जा रहा था। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं अल्तमश, अभी तुम सच्चाई से बहुत दूर हो। मैं भाभी को गिरफ्तार नहीं करूँगा। मैं इन्हें इनके घर छोड़कर आ रहा हूँ। तुम एम्बुलेंस को फ़ोन करो। बिना अल्तमश की कोई बात सुने वो वफ़ा को अपने साथ आने का बोलकर खुद बाहर की सिमत बढ़ गया। वफ़ा ने एक आखिरी आस भरी नज़र ली, अल्तमश की तरफ देखा। शायद वो उसकी तरफ एक नज़र तसल्ली बख्श नज़रों से देखे, मगर अब यह शायद नामुमकिन था। वफ़ा को उसकी माँ के घर छोड़कर उसने खुद रोशन विला की तरफ रुख किया। वो अच्छे से जानता था कि आज रोशन विला में तूफ़ान आया होगा, और इस तूफ़ान में दानीन ने मीडिया और पुलिस को बुलाकर हिला कर रख दिया होगा, और अपने बेटे की मौत पर खामोश बैठने वालों में से वो नहीं थी। उसने बहुत सोच समझ कर उस वक्त वो सारा प्लान बनाकर उसे अंजाम दिया। वफ़ा को बचाने के लिए जो चाल चली थी, न जाने वो कामयाब होगी भी या नहीं, मगर वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करना चाहता था। अगर वो पुलिस वाला बनकर अपनी बहन के कातिल को ढूंढने में नाकामयाब रहा तो कम से कम ये पुलिस की वर्दी वफ़ा को बचाने के काम तो आनी चाहिए। वो वीरान उजड़ी हालत में घर में दाखिल हुई। मरियम ने हैरत से अपनी बेटी की इस हालत को देखा। एक पल के लिए तो उनका दिल भी दहल उठा। उसकी ये हालत किसी अनहोनी का पता दे रही थी। मगर फिर भी खुद पर संजीदगी का खोल चढ़ाकर वो उसकी तरफ बढ़ी। तुम अकेली क्यों आई हो? अल्तमश कहा है, और ये क्या हालत बना रखी है? शादी के बाद लड़कियां ऐसी हालत बनाकर नहीं रखती। क्या तुम्हें अब ये भी बताना पड़ेगा? उनका सख्त लहजा भी वफ़ा पर कोई असर ना छोड़ सका। खाली खाली नज़रों से उसने अपनी माँ के जज्बात से आरी चेहरे की तरफ देखा। एक तंजिया मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। उतार दीजिए खुद पर से ये संजीदगी का लिबादा, बंद करें ये नफ़रत का ढोंग, मुस्कुराएं, जश्न मनाएं। मार आई हूँ मैं उस शख्स को, उस दरिंदे को मैंने मौत के घाट उतार दिया, जिसने हम सब की जिंदगियों से
جس نے ہم سب کی خوشیوں بھری زندگیوں کو گرہن لگا دیا تھا۔ مار دیا میں نے، مار دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا فضولیات بک رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ مریم کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھر لیا، مریم کے دل کو کسی نے شاید مٹھی میں لے لیا۔ آج نہ جانے کون سی قیامت ٹوٹنے والی تھی۔